Hello guys, welcome to Arch Education. Today I am going to discuss about that is very important topic, that is golden rice. So friends, we are going to discuss here what is basically golden rice, and this is the very important topic for the every exams. SRF, JRF as well as the state exams, UPS exams. From here, from this topic transgenic crops, they will ask at least 2 to 3 questions. So it's very important topic, and we are going to discuss this topic today. And so we will see here that basically what are the genes which we are going to insert into the rice, so it will produce the golden rice, or it will create into the golden rice, and what is the behind this the pathway involved, and what are the gene we are going to insert, from where we are taking that gene, and how it will produce. So golden rice is basically just I am giving to short as summary, that is what is the difference. फ्रेंड्स क्या होता है कि जब जो हमारे नॉर्मल राइस होते हैं, इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है, जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मीन्स अगर हम बोले कि नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। अगर क्या मीन्स ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है कि विटामिन ए की बहुत ज़रूरी है बॉडी में बनना, या फिर फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम कोई भी क्रॉप होती है उसमें जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें से अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, मेल न्यूट्रिशंस कॉज होते हैं। तो अगर मैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बात करूँ तो क्या होता है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को दिखाई देना बंद हो जाना, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसके अलावा होता है केराटोमलेशिया। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेज विच कैन बी occur, or which can be suffered by the human beings. So for that purpose we are going to produce we are going to insert our gene, we are going to insert the different different genes into the rice, and we are creating to the that in our golden rice contain the should contain the good amount of the beta carotene. So it can, if when we will consume the rice, then our body ultimately it give the vitamin A, because precursor will be present, so it will produce the, that is, vitamin A. So golden rice is a variety of rice or rajasa type of produced through the genetic engineering to the biosynthesized beta carotene, or precursor of vitamin A, is the एडिबल पार्ट ऑफ द राइस। सो यहाँ पे क्या होता है, विटामिन ए क्या होता है, एडिबल पार्ट ऑफ राइस होता है, और वहाँ पे सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, जैसे कि पता होगा कि जो भी राइस जो होता है वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। सो एवरीथिंग विल बी सिंथेसाइज्ड, एवरीथिंग विल बी गोइंग ऑन सिंथेसाइज्ड इनटू द एंडोस्पर्म itself. It is intended to produce a fortified food to be grown and consumed in the areas with a shortage of the dietary vitamin A. Golden rice is a new type of rice that contains the beta carotene provitamin, a plant pigment. 1 minute, friends. Provitamin A, a plant pigment that body converts into vitamin A as needed. So basically, basic difference you can understand, and it's a golden color because a golden rice, because its color will be, that is, yellow orange to golden color, hence its name. Okay. So you can see here, this is the golden rice. This is the, so this is the golden rice we can see here. This बहुत देर हो गया। So this is the golden rice, and this is the normal rice. So these are the two different types of the rice you can see here, and this is the golden rice that is looks like the yellowish, and this is the normal rice that is colors with the whitish. So golden rice is the developed through the genetic engineering
While ordinary rice does produce the beta carotene, it is not found in the grains. The scientists used genetic engineering to add the compound to the grain, a minor tweak that improve the grain's nutritive value. So हम राइस की nutritive value बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो गोल्डन राइस है, सॉरी जो प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन, उसको क्या करते हैं साइंटिस्ट और रिसर्चर उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं. मीन्स उन्होंने क्या किया, कोशिश किया. द बीटा कैरोटीन इन द गोल्डन राइस विच वाज मेड पॉसिबल द एडिशन ऑफ द न्यू एंजाइम आइडेंटिकल टू द बीटा कैरोटीन found in the leafy and yellow colored vegetables, orange colored fruits, even in the many vitamins supplements and food gradients. ठीक है. So this is the basically pathway of the golden rice, how it will be synthesized, and what are the different genes where we have taken, and this what are the different enzymes which gets converted one product into the another product. Okay. So first of all, what will be happen? IPP will be there in the cells, and that is called as the inositol triphosphate, or we can say inositol pyrophosphate. Okay. So after that, it will compound will form, that is geranyl diphosphate. I think you know that this is the 26 carbon geranyl. Then it will convert into phytoin in the presence of the phytoin synthase enzyme. Okay, this is the phytoin synthase enzyme, and this phytoin synthase enzyme have taken from the daffodil. Okay, daffodil is what? Daffodil is the friends. It is a flower types. It is the different types of flowers from where we have taken this gene. Then it gets converted into phytoin, and then in the presence of the phytoin desaturase as well as the delta carotene desaturase, it will give the product that is lycopene. Okay, single bacteria perform the both the function, and these are the two genes, that is phytoin desaturase and phytoin carotene. These are the two genes which we have taken the bacteria, that is Erwinia viridobora. It is not mentioned here bacteria name. You can write the bacteria name, that is Erwinia viridobora. So we have taken these two different genes from this bacteria, and then it will convert into lycopene. After converting lycopene beta cyclase enzyme work in, then it will give the product that is beta carotene. So these are the different pathways, and these are the different steps of the pathway by which we can produce the beta carotene, and then we introduce this beta carotene into the normal rice, then we can produce that is golden rice. So what is the basically, this is the pathway which is involved inside the endosperm. Okay. सो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि आखिर मीन्स जब हम इनको बनाते हैं, किसी नॉर्मल राइस से ट्रांसजेनिक बनाया, गोल्डन राइस बनाया, बीटी कॉटन बनाया, सो करते क्या इनमें ट्रांसजेनिक होते हैं. ट्रांसजेनिक में क्या करते हैं, किसी का जीन उठाते हैं और किसी के दूसरे प्लांट में जीन इसको इंसर्ट कर देते हैं, उस जीन को मैनिपुलेट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, या फिर दूसरे जीन को वहाँ से हटा के दूसरे जीन को इंसर्ट करते हैं. इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट बनाना, और इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक. ठीक है, ट्रांसफर करना जीन को one plant to another is called as the transgenic. It should be expressed in that crop or that plant in which we have inserted. ठीक है. सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट यूज़ करेंगे. अब बात आती है कंस्ट्रक्ट के लिए, तो हम चलो इसके आगे वाली स्लाइड देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे हम. ठीक है. सो यहाँ पे हम करते क्या हैं, जैसे डैफोडिल एक प्लांट है, दिस इज द डैफोडिल क्या है, फ्लावर है. ठीक है. इस फ्लावर का हमें जीन चाहिए, जो हमने इसको जीन को क्या किया, इंसर्ट किया. जीन को इंसर्ट कैसे करते हैं, आइसोलेट करते हैं. आइसोलेट करने के बाद क्या करते हैं, कैसे आइसोलेट करते हैं, डिफरेंट मेथड है, सी टैप, मैग्नेटिक बेस्ड क्विक मेथड. So you can use that method and you can isolate the properly gene. After isolating, you will get the insert. You have to insert into this. अब जब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो क्या हम ऐसे इंसर्ट कर देंगे, नहीं फ्रेंड्स. हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम टीबीफेसिस, जो कि ट्रांसफर करता है नेचुरली, और उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. तो वो क्या करता है, नेचुरली बैक्टीरिया जो होता है क्राउन गल डिसीज कॉज करता है प्लांट में, और अपना DNA इंसर्ट करता है. तो हम we will insert our DNA gene, or we will insert our desired interest into that tDNA bacteria. ओके, tDNA में इंसर्ट करेंगे, फिर वो बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, तो वो जो DNA होगा, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, डिजायर्ड जीन, वो अपने आप ही इंसर्ट हो जाता है. सो जो भी हम जीन को इंसर्ट करते हैं, क्या ओनली हम जीन इंसर्ट कर देंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें जो जीन चाहिए उस जीन को हम दूसरे प्लांट में डाल दें? नो, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्हीकल लेते हैं, कोई तो हमारी जीन को लेके जाएगा.
तो जो जो हमारी जीन को लेके जाता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी लैंग्वेज में बात करूँ तो क्या बोलेंगे, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड क्या करता है, हमारे वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्या करता है, हमारे जीन को लेके जाता है। तो जो एक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वेक्टर्स यूज़ करते हैं। इसके टीडीएन में क्या होता है, राइट बॉर्डर होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट बॉर्डर होता है, और ये क्या है बीच में। सो अगर मैं बात करूँ कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज ये डीएनए है आपका, ये भी जो भी है टारगेट डीएनए और इंसर्ट जीन हम कह सकते हैं कि ये क्या है। तो बीच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंसेस होगा। मीन्स हमें जो भी डिजायर जीन डालना होगा, यहाँ पे क्या होगा, जीन हमारा होगा, ठीक है। और ये जो होगा क्या होगा, टर्मिनेटर होगा, यहाँ पे क्या होता है, प्रमोटर। क्योंकि किसी भी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, प्रमोटर चाहिए, टर्मिनेटर चाहिए, और जो भी सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल जीन चाहिए। तो हम यहाँ पे जो हमें जीन है, स्ट्रक्चरल जीन, जो भी हमें जीन को मतलब ट्रांसफ़र करना है, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं कट करने के बाद, और जो भी प्रमोटर यहाँ ऐड करेंगे, टर्मिनेटर को यहाँ पे ऐड करेंगे। और इस पूरे कैसेट को, मीन्स ये जो बैंड बना, ये जो पट्टी बन रही, बैंड बन रहा है, दैट इज एंड यहाँ पे हम राइट बॉर्डर इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर। ये पूरा का पूरा जो कैसेट है, इसको कैसेट भी हम बोलते हैं, जिसमें प्रमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होंगे, और टर्मिनेटर होगा, जो कि जीन किसका होगा, हमारा, जो कि डीएनए इंसर्ट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कैसेट। इस कैसेट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो टीआई प्लाज्मिड है, इसके साथ क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, इसके साथ क्या करते हैं, इसको लाइगेज के थ्रू ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द राइट बॉर्डर एंड दिस इज द लेफ्ट बॉर्डर। और ये जो एनओएस है ना, ओपन लोपन सिंथेस, ये क्या है, टर्मिनेटर, ये क्या है, टर्मिनेटर है। ये हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, यू कैन सी दिस इज द CRT1, दैट इज कैरोटीन डीसैचुरेज, एंड यू कैन सी दैट इज फाइटोइन सिंथेस, दिस इज आल्सो आवर इंसर्ट जीन, ठीक है। और दिस इज आल्सो यूबिक्यूटिन। सो दिस इज द, यहाँ पे क्या होगा, प्रमोटर, दिस इज प्रमोटर, एंड दिस इज द कॉल्ड एज द टोटल, दिस कॉल्ड एज द होल बैंड इज कॉल्ड एज द, दैट इज कंस्ट्रक्ट, which we are going to insert into the different plants, which plant, whatever we are making the transgenic. So this is the process basically. And after that, when we will get inserted into the, when we will insert our gene into the normal rice plant, then it will give yield the golden rice. Okay. Beta carotene biosynthesis gene facilitates production of the beta carotene rice. Beta carotene filled rice is consumed, then gets converted into beta carotene into vitamin A. When we are consuming, friends, this golden rice, this rice, then we have the, in everybody we have the, we will have the precursor, that is beta carotene. So it will ultimately converted into the, that is beta carotene ultimately converted into the beta carotene converted into the vitamin A. So there is no need to done anything, no need to do anything. Okay. सो आई थिंक, एंड आपको एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स, कि क्या होता है, जो बीटा कैरोटीन होता है, एक तो होता है गोल्डन राइस 1, जिसको हम बोलते हैं SGR1, और दूसरा होता है दैट इज़ गोल्डन राइस 2। अब तो जनरली लेटेस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बायो फोर्टिफाइड राइस भी आ गया है, जिसमें से जिंक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वी कैन इंक्रीज, वी कैन इन्हेंस, और वी कैन इम्प्रूव द जिंक एज वेल एज द आयरन क्वांटिटी इन बायो फोर्टिफाइड राइस। सो यहाँ पे कम अगर हम कंपेरिजन करें, वी हैव टू कंपेयर, इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर दैट इज़ गोल्डन राइस 1 and 2। सो अगर मैं बात करूँ गोल्डन राइस 1 की, तो यहाँ पे जो बीटा कैरोटीन की जो क्वांटिटी होती है फ्रेंड्स, वो होती है 6 माइक्रोग्राम पर ग्राम, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ गोल्डन राइस 2 की, तो यहाँ पे होती है 37 माइक्रोग्राम पर ग्राम। सो इट्स 23 टाइम्स मोर, ठीक है। So I think this video is very helpful for you. So if this video is helpful for you, so please hit like button and get subscribe my channel. Thank you guys. Thank you so much.